Hello everyone, welcome once again to our channel Rayyan Tutorial. Now in this video we are going to do question number 6, 7 and 8 from exercise 1.2. Okay, so let's start with the 6th one. So as you can see, question number 6 is let A is equal to 1, 2, 3 and B is equal to 4, 5, 6, 7 and let F as a mapping which is given as 1, 4, 2, 5 and 3, 6. This is a function from A to B. Now you have to show that this is 1, 1. Okay, so let's do that. Okay, now see that question. So as you know that the mapping is 1 goes to 4, 2 goes to 5 and 3 goes to 6. So in this case you can do that. You have to check this for 1 1. So you have 1 goes to 4. Where is 4? Okay, 1 goes to 4. Then you have 2 goes to 5. And then you have 3 goes to 6. So as you can see from this set, that is a domain set, okay, one element maps to one element of the codomain. Okay, there is 1 to 1 relation. Okay, you can see clearly there is 1 to 1 relation. So this is definitely going to be 1 1. Now we have to write this how it is 1 1. So we'll write for each and every element. Okay, so as you have that f of 1 is equal to 4, then you have f of 2 is equal to 5, then you have f of 3 is equal to 6. Now as each element of A maps to only single element of B, therefore it is 1 1. Okay, so you can write therefore as each element of A maps to only one element of B, therefore f is definitely going to be 1 1. This is how you have to write. So this can come for 1 mark only in MCQ. Now let's take the next question from exercise 1.2, question number 7, in which it is given that in each of the following cases state whether the function is 1 1, onto or bijective. Justify your answer. तो इस क्वेश्चन में हमें चेक करना है कि फंक्शन 1 1 होगा, onto होगा या इट इज़ अ बाइजेक्शन. दो क्वेश्चंस दिए हैं इसमें. So look at the first one where you have the function fx is equal to 3 minus 4x. अब यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे अगर हमने इसकी मैपिंग ली, सपोज आई पुट 0 इन प्लेस ऑफ x, तो 0 पुट करने पे हमारी वैल्यू क्या हो जाती है 3. मतलब हमारा 0 कहाँ पे मैप कर रहा है 3 को. ठीक है, देन यू हैव 1, टेक हाफ फर्स्ट. हाफ हमने लिया यहाँ पर, तो हाफ लेंगे तो वो 2 से ये 4 कैंसिल होगा, सो यू विल गेट 2. सो 3 minus 2 is 1. सो वेयर विल दिस 1 हाफ विल गो, इट विल गो टू 1. ओके, नाउ व्हाट अबाउट द नेक्स्ट वन, टेक 1. 1 हमने यहाँ पे रखा, तो यहाँ पे 3 minus 4, 3 minus 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी -1. सो ये 1 कहाँ पे जाएगा हमारा, दिस विल गो टू -1. Similarly take minus half. When you take minus of half in place of x, 2 से 4 cancel हो जाएगा and that minus minus become plus. So you will get, here you will get 2. So it is 3 plus 2. So this will go to 5. So like this, if you find, you can see that each number maps to a single number in the codomain. ठीक है, क्योंकि ये जो, so let's prove this for 1 1 and onto. तो यहाँ पे ये 1 1 भी है, ऑनटू भी होगा क्योंकि पूरा जो हमारा रेंज मिलेगा, यहाँ पे जो हमारा रेंज होगा वो ये हमारा यही सेट हो जाएगा, तो रेंज और कोडोमेन इक्वल हो जाएगा. दैट्स वाई इट इज़ ऑनटू. ओके, such type of question where the function is 1 1 onto, we have to apply the definition. So let f of x is equal to f of y. यहाँ से हमें स्टार्ट करना है. f of x की वैल्यू हमें दी हुई है 3 minus 4x and this is 3 minus 4y. ठीक है, सो नाउ यू गेट दैट 3 3 गेट कैंसिल, सो यू हैव -4x इज इक्वल टू -4y. अगेन दैट -4 गेट कैंसिल, सो यू हैव x इज इक्वल टू y. सो यू हैव स्टार्टेड फ्रॉम fx इज इक्वल टू y, fx इज इक्वल टू f of y and we reached at x is equal to y, and this is true for all x and y that belongs to R. This R is domain, so therefore the function is 1 1. फंक्शन तो 1 1 हो गई. Now let's check this for onto. Okay, now in case of onto, as we were doing earlier also, we have to apply the definition. So for y belongs to R, that is the codomain, there exists a x in R in the domain such that fx is equal to y. अभी fx की वैल्यू क्या है 3 minus 4x, so 3 minus 4x is equal to y. Now what we have to do, we have to write this x in terms of y. तो हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा. तो ये क्या हो जाएगा, so 3 minus 4x is equal to y. So from this you get that minus 4x is equal to y minus 3. ओके, हम 3 को इधर ले जाएंगे, सो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू 3 minus y upon 4.
ठीक है, तो y क्या हो जाएगा 3 माइनस वाई अपॉन 4। नाउ क्योंकि अभी ये जो सारी वैल्यूज़ हैं हमारी y x, ये सारी वैल्यूज़ कहाँ पर आ रही हैं r में, r और मतलब डोमेन और कोडोमेन दोनों ही r है। तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू हम रखेंगे, चाहे वो नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, फ्रैक्शन में हो, सब वैल्यू हमें अलाउड है यहाँ पर। ठीक है, तो कोई भी वैल्यू रखेंगे दिस इज़ ट्रू बिकॉज दिस बिलोंग्स टू r ओनली। ठीक है, जो भी वैल्यू आएगी दिस विल बिलोंग टू r। x की वैल्यू कहाँ आने वाली है, r में ही आने वाली है। सो दिस इज ट्रू फॉर ईच एंड एवरी x। सो यू हैव दैट f इज ऑन टू, तो f मस्ट बी ऑन टू। I hope this is clear. Okay, as the second part of this question is fx is equal to 1 plus x square. So for this we have to check 1 1 and on 2. Okay, जब भी x square रहेगा तो हमें एक बात ध्यान देनी है कि x square में जो हमारा मोस्टली जो हमारा फंक्शन होता है, अभी यहाँ पे 1 प्लस है, ठीक है, तो x square के जो फंक्शन होते हैं उनकी मैपिंग कहाँ चली जाती है, पॉजिटिव नंबर्स पे, क्योंकि जो हम नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे उससे भी आंसर पॉजिटिव आएगा, जो हम पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे उससे भी आंसर पॉजिटिव आएगा। तो मतलब जो इसका रेंज सेट मिलता है वो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स मिलता है। ठीक है, अगर पॉजिटिव रियल नंबर्स है तो रियल नंबर्स मिलेगा। अब यहाँ पे क्या देखना है, अगर यहाँ पे माइनस होता तो शायद कुछ डिफरेंस हो जाता, 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता तो आंसर डिफरेंट होता, लेकिन अभी 1 प्लस के लिए चेक करना है। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पे 0 रखा, इफ़ आई पुट 0, ओके, सो इफ़ आई पुट 0 इन प्लेस ऑफ x, सो आई विल गेट 1, सो 0 विल मैप टू 1। वेयर विल 1 गो, 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1, 1 प्लस 1 2, सो दिस विल गो टू 2। पुट माइनस 1 इन प्लेस ऑफ x, तो माइनस 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1, फिर 1 प्लस 1 कितना होगा, 2। सो एज यू कैन सी दैट माइनस 1 एंड 1 मैप्स टू सेम नंबर दैट इज़ 2। तो एक भी हमें आंसर ऐसा मिल गया, इसका मतलब है ये 1 1 तो नहीं होगा, सो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी 1 1। ओके, व्हाट अबाउट ऑन टू, ऑन टू में क्या होने वाला है, यहाँ पे हमारा एक तो प्लस साइन है, फिर ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये सोने पे सुहागा वाला काम हो गया यहाँ पर, क्योंकि एक्स स्क्वायर भी है और प्लस भी है, तो दोनों से ही आंसर क्या मिलने वाला है, पॉजिटिव। सो एज यू कैन सी दैट यू विल ऑलवेज गेट अ रेंज विच इज़ सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स। रेंज हमारी जो मिलने वाली है वो पॉजिटिव रियल नंबर्स की मिलने वाली है। इनफैक्ट यहाँ तो 0 भी नहीं मिलेगा, किसी नंबर से 0 भी नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि 1 के साथ जो भी नंबर होगा वो ऐड ऑन हो जाएगा, तो 1 से बड़ा ही नंबर मिलेगा हमें यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा रेंज हो जाएगा। सो दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी ऑन टू, क्योंकि रेंज हमारा कोडोमेन के इक्वल नहीं आ रहा है। सो लेट्स प्रूव दिस वन बाय वन। सो फॉर 1 1 वी कैन क्लियरली राइट दैट f of 1 maps to 2, which is same as f of minus 1, therefore f is not 1 1। तो बिल्कुल ऐसे ही हम ऑन टू में भी दिखाना है। सो फॉर ऑन टू वी हैव, ठीक है, either you can take a negative number from the set codomain and then you can show that the pre-image does not exist for that element, or you can write the range set is not equal to the codomain। ठीक है, so here range is actually set of all positive रियल नंबर्स। ठीक है, एक्सक्लूडिंग 0, 0 भी नहीं है इसमें, एंड योर कोडोमेन is actually the whole set R। So as you can see that range is not equal to codomain। जब ऐसी कंडीशन आती है तो हम बोलते हैं f is not on to, f हमारा on to नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमें दिखाना है। Let's see question number 8, which is let A and B be sets, show that f from A cross B to B cross A such that f of A B is equal to B A। ठीक है, इसका रिवर्स हो जाएगा, इज अ बाइजेक्शन फंक्शन। तो हमें दिखाना है कि ये फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव होने वाला है। सो लेट्स डू दैट। सो यहाँ पे बाइजेक्शन हमें शो करना है, तो 1 1 ऑन टू हमें शो ही करना है यहाँ पर। तो जब शो करना है तो हम डेफिनेशन लेके चलने वाले हैं। सो लेट्स डू दिस फॉर 1 1। सो वी विल टेक लेट f of A1 B1 is equal to f of A2 B2, and you have these A1 B1 and A2 B2 in A cross B। ठीक है, हमने ये ले लिया। अब हमने ये लिया तो बाय डेफिनेशन इसकी डेफिनेशन हमें क्या बताती है, जो भी हम लेंगे वो BA बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, B1 A1। सिमिलरली दिस बिकम्स B2 A2। ऐसे दो कोऑर्डिनेट पेयर अगर इक्वल होते हैं, अगर हम उन्हें इक्वल लिख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि B1 इज इक्वल टू B2 होगा एंड A1 इज इक्वल टू A2 होगा। और अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब तो ये है कि A1 B1 जो है वो A2 B2 के इक्वल है। तो ये बिल्कुल उसी तरह की कंडीशन है कि f of x इज इक्वल टू f of y, देन यू गेट x इज इक्वल टू y। सो इफ़ यू गेट सो f x इज इक्वल टू y, दैट मीन्स द फंक्शन मस्ट बी 1 1। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा f जो हो जाएगा दैट इज़ 1 1। ठीक है, ये 1 1 क्यों होगा, एज दिस इज़ ट्रू फॉर, ये ट्रू है फॉर ऑल A1 B1 एंड A2 B2 दैट बिलोंग्स टू A क्रॉस B। ये सारे A क्रॉस B के लिए ट्रू होने वाला है, दैट इज़ वाई इट इज़ गोइंग टू बी 1 1। व्हाट अबाउट ऑन टू,
Okay, so for onto you have to consider a pair in your codomain first. So let BA belongs to B cross A. Okay, now let for this BA there exists a AB that belongs to A cross B. Okay, such that f of AB is equal to BA. ये हमें ढूंढ के निकालना है. ठीक है, देयर एग्जिस्ट जो हम लिखते हैं यहाँ पर, इसका मतलब है वी हैव टू फाइंड सच एलिमेंट सच दैट वी हैव f of AB is equal to BA. Okay, as you can see that you have that BA, we have taken let BA belongs to B cross A. So for this it implies that your B small b belongs to B and your small a belongs to A. अब यहाँ पे कोई नंबर तो है नहीं जिसको हम A और B हम कन्वर्ट करें x को y के फॉर्म में, y को x के फॉर्म में. तो इस तरह से हमें इसके लिए प्रूफ लिखना पड़ेगा कि यहाँ पे BA जो है वो B क्रॉस A में बिलोंग करता है. इसका मतलब है जो पहला कोऑर्डिनेट होता है वो पहले सेट में जाता है, जो दूसरा कोऑर्डिनेट होता है वो दूसरे सेट में जाता है. तो यहाँ पर A हमारा A में है, तो वी कैन ऑल्सो राइट दिस A कॉमा B बिलोंग्स टू A क्रॉस B. ठीक है, तो समझ में आ रहा है. यहाँ पे देखो ए बी जो है वो ए क्रॉस बी में था और ये बी क्रॉस ए बी ए जो था वो बी क्रॉस ए में था. इसके लिए हमें प्री इमेज मिल गई. वी गॉट अ प्री इमेज फॉर दिस. ये हमने क्या लिया, प्री इमेज हमें मिल गई यहाँ पर. ठीक है, ये हमारा था कोडोमेन सेट, ये हमारा कोडोमेन में था एंड दिस इज डोमेन. सो वी गॉट अ प्री इमेज ऑफ दिस एलिमेंट इन द डोमेन. और ये हमारा कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट था, हमने ऐसे ही रैंडमली एक एलिमेंट पिक किया था बी ए जो बी क्रॉस ए में था और उसके लिए हमें प्री इमेज मिल गई. जब ऐसा होता है दैट मीन्स इट इज़ ट्रू फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट. सो देयरफॉर एफ मस्ट बी ऑन टू. तो एफ कैसा हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा. और जब एफ ऑन टू हो जाएगा तो इसका मतलब है हमारा ये फंक्शन कैसा है, 1 1 भी है एंड ऑन टू भी है. हमें बाइजेक्शन प्रूफ करना था, देयरफॉर एफ इज़ अ बाइजेक्टिव फंक्शन. तो एफ हमारा एक बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा. ठीक है, तो जब शो दैट वाले क्वेश्चन आते हैं यू हैव टू अप्लाई द डेफिनेशन एंड यू हैव टू शो ईच पार्ट 1 1 एंड ऑन टू. ओके, सो स्टे ट्यून्ड विद अस, वी विल डू मोर प्रॉब्लम्स ऑन दिस.